Assalamu alaikum dear students, welcome to the new class and new academic session. Before going to start my lecture, I would like to congratulate you on your great success as you have been passed your annual exam and promoted to the new class, class 6, session 2021-22. This is your social study class. I am your social study teacher with my first lecture. This is an image of your book, of your social study book. Okay, this is Oxford Revised Edition number 1, Secondary Social Studies for Pakistan by Peter Moss. Okay, we will start from your geography section. Okay, as we have the two section of this in social study, so today we will start with geography section. This is your chapter number 1, Our Country in the World. As the title shows that we will read about the Pakistan, the geographical feature and the location of Pakistan. Okay, now you can see a map on your screen. Okay, it shows the location of Pakistan. The location of Pakistan, as I have circled the map of Pakistan for you people, Pakistan is strategically located as a link between the Islamic bloc to the west and north and द साउथ एशियन कंट्रीज़ टू द ईस्ट। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जो उसकी लोकेशन है, अगर हम नॉर्थ और वेस्ट में देखें तो ये तमाम बाकी इस्लामिक ब्लॉक के साथ जो है तो ये अटैच है, ठीक है। एंड द साउथ एशियन कंट्रीज़, जो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान की ईस्ट में आते हैं। जितना भी आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है इस मैप के ऊपर, इसमें हमें क्या, ये ग्रीन कलर क्या शो कर रहा है, दैट दे आर द इस्लामिक कंट्रीज। ऑल दीज ग्रीन कलर शोज द इस्लामिक ब्लॉक और द इस्लामिक कंट्रीज। Here is another map for you people in which I have written the continents for you people. Here is the Asia, Europe and Africa. In all these three continents we are having the Islamic countries. In Europe we are having a very tiny state, you can see on your screen, a very tiny state, Albania. Okay, in these three continents we are having the Islamic countries. इन तीन continents में, सिर्फ इन तीन continents में हमारे पास जो है तो Islamic countries मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी continents में we do not have any Islamic country. Okay, now here in this map you can see that we are having the 7 continents of the world: the North America, South America, Africa, Europe, Asia and Australia. इन सारे कॉन्टिनेंट्स में आप देख सकते हैं कि अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप के कुछ, जो मैंने आपको पिछले मैप में बताया है कि टाइनी स्टेट है अल्बानिया की, इनके अलावा हमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हमें कहीं भी जो है तो इस्लामिक कंट्रीज़ नज़र नहीं आ रहे। सो वी डू नॉट हैव द इस्लामिक कंट्रीज़ इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। Okay, now you can see a map on your screen. On this map you can see we are having a lot of countries, okay, but here our concern is with the subcontinent. In the subcontinent we are having Pakistan, India and Nepal, Bhutan and Bangladesh. ये कुछ एरियाज थे जो कि हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में आते थे। अब सब कॉन्टिनेंट जो है तो बाकी सब कंट्रीज से, चाइना से और इसके अफगानिस्तान, ईरान से जो है तो शट ऑफ होता है, कट ऑफ होता है या सेपरेट होता है। वो उसमें हमारे पास डेजर्ट्स भी आते हैं और डिफरेंट माउंटेन रेंजेस भी आती हैं। Now the mountain ranges of the subcontinent. First of all, what is the mountain range? ठीक है, माउंटेन रेंज होती क्या चीज़ है? माउंटेन मीन्स पहाड़ एंड रेंजेस मीन्स अ सीरीज ऑफ माउंटेन। जब एक पहाड़ के साथ दूसरा पहाड़ रेंज में होता है, सीरीज में होता है और एक लाइन में ये बहुत सारे पहाड़ होते हैं, इट इज़ नोन एज द माउंटेन रेंज। नाउ द माउंटेन रेंजेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आर हिंदू कुश माउंटेन रेंज, काराकोरम माउंटेन रेंज एंड हिमालयाज माउंटेन रेंज। Now, the subcontinent is largely shut off from the rest of the Asia by deserts in the west. What does it mean that subcontinent जो है तो बाकी के एशिया से जो है तो कट ऑफ होता है, सेपरेट होता है बाय द डेजर्ट्स इन द वेस्ट। ठीक है, वेस्ट में, एशिया के वेस्ट में जो डेजर्ट्स हैं उनकी वजह से ये सेपरेट होता है एशिया से बाय द माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द नॉर्थ। मीन्स के नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में जो माउंटेन्स हैं, जो भी हमने पहले डिस्कस भी किए हैं, उनकी वजह से ये सेपरेट होता है। एंड पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अगर हम सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान की लोकेशन देखते हैं तो पाकिस्तान की लोकेशन किधर है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। Okay, now you can see the map on your two maps on your screen.
ठीक है, इनमें आपको कराकोरम माउंटेन रेंज, हिमालयस माउंटेन रेंज, हिंदू कुश माउंटेन रेंज एंड सम ऑफ द डेजर्ट्स, ठीक है, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ आपको डेजर्ट्स नज़र आएंगे। and these are some of the mountain ranges and the deserts because of which the subcontinent is shut off or separated from the rest of the Asia. Now passes. What are the passes? Passes often provide the easiest routes for people to travel across steep mountain ranges. ठीक है, ये पहाड़ों के दरमियान में रास्ता बनाया जाता है for the traveling. उर्दू में passes को दर्रा बोलते हैं. Now we are having Khyber Pass and Bolan passes in the west which lead to Afghanistan and on to Iran. मीन्स के खैबर पास और बोलान पास जो हमारे पास वेस्ट में है तो ये लीड करते हैं, यहाँ से कहाँ का रास्ता निकलता है, अफगानिस्तान एंड ऑन टू ईरान. देन वी आर हैविंग द खुंजराब पास. द खुंजराब पास लीड्स टू चाइना. ठीक है, खुंजराब पास जो है तो वहाँ से हमें रास्ता मिलता है चाइना का. खुंजराब पास इज़ द हाईएस्ट पास एंड इट हैज़ 4,700 meters height. Now you can see a map on your screen. This is a map of South Asian countries. Here we are having Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives. Here we are having the South Asian countries in alphabetical order. Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. The alphabetical order किसको कहते हैं, जो कि हमारे पास अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस में आते हैं. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश एंड भूटान दोनों बी से जो स्टार्ट हुए हैं हमारे पास कंट्रीज वो बिल्कुल स्टार्ट में हैं. देन वी आर हैविंग इंडिया, देन मालदीव्स, देन नेपाल, देन पाकिस्तान एंड देन श्रीलंका. Here you are also having another map of the South Asian countries. You can see on the map all these countries and the list of these countries are in alphabetical order. Now relief map. According to your book, page number 3, we are having a relief map of South Asia on your book. Now what is a relief map? A relief map shows usually by means of different colors the height of the land above the sea level. It also shows the rivers, the lakes and the other geographical features. ठीक है, रिलीफ मैप क्या होता है, इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं जो कि हमें हाइट बताता है ऑफ द लैंड. ठीक है, ज़मीन की हाइट बताता है अबव द सी लेवल, कि कोई भी लैंड जो है, कोई भी कंट्री जो है हमारे पास सी लेवल से उसकी हाइट कितनी ज़्यादा है, वो कितना ऊंचा है. एंड इट ऑल्सो शोज़ द रिवर्स एंड लेक्स. ठीक है, साथ में हमें डिफरेंट जो है तो रिवर्स और लेक्स के बारे में एंड अदर जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में विद द हेल्प ऑफ द कलर्स. ठीक है, कलर्स की हेल्प के साथ हमें पता चलता है. नाउ यू कैन सी अ रिलीफ मैप ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, ये है हमारे पास रिलीफ मैप. ग्रीन कलर जो है तो हमें फर्टाइल लैंड शो कर रहा है. ठीक है, लाइट येलोइश कलर जो है तो हमें नॉन फर्टाइल एरिया शो करता है. जो डार्क ब्राउन कलर है ये ज़्यादातर जो है तो डेजर्ट एरियाज हमें शो करते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे जो है तो डिफरेंट हाइट्स पे हमें जो लैंड वाटर से डिफरेंट हाइट्स पे होती हैं तो उनका भी हमें पता चलता है. Now the river systems of the subcontinent. Here we are having the two great river systems. ठीक है, हमारे पास इधर सब कॉन्टिनेंट में दो बड़े बड़े दरिया हैं. नंबर 1 इज़ द रिवर इंडस एंड नंबर 2 इज़ द रिवर गैंजेस. रिवर इंडस को उर्दू में दरियाए रावी कहते हैं और रिवर गैंजेस को उर्दू में दरियाए गंगा कहा जाता है. Now river Ganges. River Ganges is a river of India. Okay, it flows through India. The valley of the river Ganges is the most fertile part of India. ठीक है, रिवर गैंजेस का जितना भी जो वैली है, इर्द गिर्द का जितना भी एरिया है, इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द इंडिया. द लैंड फर्टाइल मीन्स, फर्टाइल का मतलब है जरखेज़ एरिया है, जरखेज़ हिस्सा है इंडिया का. The land is low lying and there is plenty of water for irrigation. ठीक है, here is the land is low lying. land जो है तो कदरे नीचे है और here we are having a plenty of water for irrigation. plenty of water का क्या मतलब है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है for irrigation. irrigation means आपाशी के लिए, फसलों की आपाशी के लिए जो है तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोवाइड किया जा सकता है. दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चर टेक्स प्लेस. यही वजह है कि जहाँ पे रिवर्स ज़्यादा होती हैं वहीं पे जो है तो एग्रीकल्चर ज़्यादा जो है तो वो फर्टाइल लैंड होती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं. Okay, now you can see a map
ऑफ सब कॉन्टिनेंट ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, आपको मैप में स्पेशली रिवर गेंजेस नज़र आ रहा होगा, दरियाई गंगा, कि ये इंडिया में कहाँ से स्टार्ट होके किधर तक ये जाता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो है तो बे ऑफ बंगाल में जो है तो ये ड्रॉप होता है। The river Ganges enters the Bay of Bengal through huge delta. Now what is bay? Bay is a उर्दू में जो है तो बे को खलीज कहते हैं। ठीक है, एंड द इंग्लिश मीनिंग ऑफ बे इज अ ब्रॉड इनलेट ऑफ द सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड्स। एंड डेल्टा, नाउ व्हाट इज डेल्टा? आपको ये नीचे पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि समटाइम्स व्हेन अ रिवर एंटर्स द सी इट ब्रेक्स इनटू मेनी स्मॉल रिवर्स और चैनल्स इन अ वी शेप। ठीक है, आपको ये नीचे मैप में वी शेप में जो है तो छोटे छोटे रिवर्स में जो है तो ये रिवर गंगा जो है तो ये स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है, ब्रेकआउट हो जाता है और फिर बे ऑफ बंगाल में एंटर होता है। मच ऑफ दिस डेल्टा इज़ इन बांग्लादेश। ठीक है, ये ज़्यादातर जितना भी डेल्टा का पार्ट है इट इज़ इन बांग्लादेश। नाउ डेक्कन, डेक्कन इज ए प्लेट्यू। ठीक है, अब डेक्कन इज ए प्लेट्यू इन इंडिया। अब what is plateau? Plateau is these are the areas of flat land well above the sea level. Some plateaus are fertile while others are poor land. अब प्लेट्यूज जो होते हैं तो ये कभी कभी फर्टाइल भी होते हैं और कभी कभी जो है तो बिल्कुल ड्राई होती हैं। अब डेक्कन एक प्लेट्यू है इंडिया में। ठीक है, इट इज़ फेयरली ड्राई पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इट इज़ ए ड्राई पार्ट। ठीक है, ये खुश्क एरिया है इंडिया का और सब कॉन्टिनेंट का। इट्स वेरी वार्म एंड जनरली नॉट वेरी फर्टाइल। इट इज़ वार्म, ये हमेशा गर्म रहता है, एंड जनरली नॉट वेरी फर्टाइल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बास प्लेट्यू ऐसे होते हैं जो कि फर्टाइल नहीं होते। सो डेक्कन इज़ ए प्लेट्यू इन इंडिया विच इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। कि अभी स्क्रीन पे आपको मैप नज़र आ रहा है जिसके ऊपर आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू जो होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया इट्स ए फ्लैट लैंड अबव द सी लेवल। ठीक है, ये सी लेवल से अबव होता है, ऊंचा होता है और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है। कुछ प्लेट्यूज जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं और कुछ प्लेट्यूज जो होते हैं तो वो फर्टाइल नहीं होते, ड्राई होते हैं। तो डेक्कन इन इंडिया इट इज़ ए प्लेट्यू विच इज़ नॉट अ फर्टाइल एरिया। Hope you have understood the lecture. We will continue this chapter in our next lecture. Till then, Allah Hafiz.